Yes, dear students, this is the inaugural demonstration class, especially with respect to general knowledge or general studies. I mean the state judiciary examination, you see. General studies or general knowledge, as commonly used to, is an important component of, is perhaps one of the important component of almost every competitive examination. Every competitive examination, including the PCS judiciary, including the PCS judiciary, PCS judiciary general knowledge or general studies, therefore, is not an exception, you see. It is an important component of both, I mean, preliminary examination and judiciary mains examination. It consists of altogether 20 questions on general knowledge, 20 to 25 questions general studies, whatever you prefer to call it, and it consists of at least 100 marks on general knowledge or general studies, and that differs from state to state. Somewhere in the states it consists of, I mean, 250 marks also. So general knowledge or general studies, which is an important component of, I mean, this competitive examination, including PCS judiciary. And now what is important here, that with respect to especially PCS judiciary competitive examination, there is a common tendency on the part of the aspirants for, I mean, PCS judiciary or state judiciary, and the common tendency is that normally the aspirants for PCS judiciary neglect this part of the competitive examination, and that becomes detrimental, I mean, the success ratio of the final success ratio of the PCS judiciary result. This tendency has to be curbed. Like other law papers, I mean, the aspirants for PCS judiciary examination should also prepare, and they are required to prepare. The general knowledge or general studies in an organized form. So, for the purpose of your understanding, we are, I mean, starting with
a schematic, study of general knowledge, study of general studies within the parameter of a scheme of, kindly see, this is the new scheme of current and legal GK. This is the heading, new scheme of current and legal GK. Now this new scheme of current and legal GK, as you can see on the board, this new scheme of current and legal GK, as you can see on the board, consists of two important parts, you see. It consists of two important parts, you see. The first part is general scenarios. General scenarios, this is the title of the first part of this scheme of current and legal GK, and it includes important items, you see. Items are in seriatim. In seriatim, I have put up the important items, on this, scheme of current and legal GK. So this is the first part, you see. You must have a scheme. Even if you are studying current, and legal GK, you must have a scheme. There is a vast treasure of current general knowledge and current legal knowledge. It is like an ocean. So unless you organize your study in a particular framework, unless you organize your studies in a particular framework, I think you won't be able to, properly, streamline your preparation for this PCS judicial, examination. So this scheme, as I told you just now, the first part is general scenarios, and the side item is important items. It all starts with item number 1. So kindly see, it all starts with item number 1. So whenever you start your preparation, and preparation for current awareness, current general knowledge and legal general knowledge, you should start first of all, under this general scenario, you should start first of all with legal scenarios. This is legal scenario. So the subtitle here is, of the first part is legal scenario. Legal scenario. Now under this subtitle legal scenario, there are 5 small items. Kindly see A, B, C, D and E. I'm just reading through. There are 5 important small items. आप जरा देखते जाएं. Under this subtitle, item number 1, A is, latest legal facts and news item. Latest legal facts and news item. Latest legal fact, and I'll give you the examples also. I will give you the examples also. A few examples will also be explained in this connection. That is what I said. We will also provide you some important examples. So the sub item is A, and this sub item A is titled as latest legal facts oblique news item, और ब्रैकेट में हो जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो. ब्रैकेट में हो जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो.
तो नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो आप जरा सा पहले कुछ देख लें, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल शुरू करेंगे। बी आइटम इज, बी आइटम एज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल हम जो डिस्कस करेंगे वो तो है ही, लेकिन आप जरा सा एग्जाम्पल्स देखते जाए। जैसे इफ यू टेक आइटम नंबर ए, latest legal, when you start with latest legal facts और न्यूज आइटम, तो नेचुरली यहां पर आपको है ना एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम ये होगा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम इन दिस कनेक्शन वुड बी, हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन है ना आपको पूछ दे कि what is the name of the committee over the issue, what is the name of the committee to monitor the issue relating to Pegasus spyware, Pegasus spyware। आपसे पूछ सकता है लेटेस्ट लीगल फैक्ट्स में व्हाट इज 105th अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट इज 105th अमेंडमेंट एक्ट। आपसे है ना, आपसे ये लेटेस्ट लीगल फैक्ट्स में ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी रिलेटिंग टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पावर्स ऑफ पार्डनिंग, governor and president powers of pardoning, and what was the standoff, and in which case what was the standoff Supreme Court with respect to pardoning power of governor vis-a-vis that of president। ये सब न्यूज आइटम, ये सब न्यूज आइटम, तो नेचुरली ये आइटम्स जो है वो यहां पर आएगा, लेटेस्ट लीगल फैक्ट्स ऑब्लिक न्यूज आइटम नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। अब जैसे मान लिया लेटेस्ट लीगल फैक्ट्स न्यूज आइटम नेशनल, हमने आपको कुछ एग्जांपल दिया, अगर इंटरनेशनल में आपको एग्जांपल जैसे कुछ एग्जांपल देना है तो यू कैन टेक द एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, Financial Action Task Force keeps the sovereign states of Pakistan into the grey list, into the grey list। यानी आज तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने है ना आपको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। तो नेचुरली ये हो गया लेटेस्ट लीगल फैक्ट्स एंड न्यूज आइटम कंसर्निंग इंटरनेशनल सिनेरियो। इसलिए मैंने यहां पर ए के अंतर्गत, काइंडली सी, हमने ए के अंतर्गत लेटेस्ट लीगल फैक्ट्स एंड न्यूज आइटम, ब्रैकेट में आप देखेंगे, ब्रैकेट में हमने लिखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। तो एग्जाम्पल को समझते जाओ, यानी in the subtitle of legal scenario A, you have to collect some of the important topics concerning latest legal news item which will cover both national and international scenario। B पर आइए, स्कीम आपके सामने रहना जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी ग्रोपिंग इन द डार्क। एक ओशन है, ओशन में आप तैरते रह जाएंगे, लेकिन एक स्कीम के तहत अगर आप करंट और लीगल जीके को पढ़ते हैं तो पीसीएस जे की तैयारी आपको है ना अच्छे तरीके से हो सकती है। आगे बढ़िए, दूसरा जो आइटम है वो है बी। अब देखिए बी को देखिए, आप बी को देखिए, ये कहता है इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स ऑब्लिक legislation and amendments। this is subtitle B, important statutes oblique legislation and amendments। अब ये बी को अगर आइटम देखें तो कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स हैं, स्टैट्यूट यू सी, यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। स्टैट्यूट की जब बात करते हैं, है ना, तो जब गवर्नमेंट बिल, एक चीज को आप समझ ले यहां पर, जब गवर्नमेंट बिल
government bill is passed by both the houses of parliament, when the government bill is passed by both the houses of parliament and it is it is assented to by the president under article 111 of the Indian Constitution, then it takes the shape of a statute. तब ये एक्ट या स्टैट्यूट बन जाता। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि बी में आपको यह भी कवर करना पड़ेगा। जब आप करंट अफेयर्स और करंट लीगल जनरल नॉलेज को पढ़ रहे हैं तो बी में यू हैव टू कवर इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशन एंड अमेंडमेंट। तो इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट की जब बात करते हैं तो जैसे टेक द एग्जांपल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट ये स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन हो गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आपको मालूम होगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाज इन द न्यूज, ड्यू टू 13 or 14 civilians were ambushed in Nagaland. Civilians. It was a case of mistaken identity, and this was admitted to by the Ministry of Home Affairs also. A committee was constituted by the Ministry of Home Affairs. Committee submitted its report recently, and thereafter, some of the areas in Nagaland, Manipur or Assam, the application of this Armed Forces Special Power Act in some of the disturbed areas of Assam, Nagaland and Manipur were reduced. Now, under the B, what I am trying to say, kindly understand me, under the subtitle B, when you study, you should also cover, important statute or legislation or amendment. अब जब amendment की बात करते हैं तो naturally you will be confronted with certain amendments also. जैसे recent amendment in this connection is 105th amendment. तो जब 105th amendment preceded by 104th amendment, preceded by 103rd amendment, preceded by 102nd amendment, अगर आप देखें तो कुछ important amendments you have to cover under this subtitle B. You have to cover under this subtitle B. Subtitle B, and in the legal scenario, you have to cover important statutes, legislation and amendments. Subtitle C पर आइए, subtitle C पर आइए। मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, सबटाइटल C पर आइए तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है that you should also cover important constitutional and non-constitutional bodies in the news. You should also cover some important constitutional and non-constitutional body in the news. हम दो एग्जाम्पल ले, I'm just taking two examples here. अब जब आप you are going through some important constitutional and non-constitutional bodies in the news, that is sub-item, subtitle C of item number 1, that is legal scenario. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर powers of the election commissioner, two important case law relating to this multi-member body.
So when you go through, I mean, this constitutional body in the news, न्यूज में क्यों था? न्यूज में क्यों था? अरे न्यूज में इसलिए था that the chief election, a new chief election commissioner was appointed. A new election commissioner was appointed. Rajiv Kumar and Anup Chandra Pandey, new election commissioner was appointed. So, I mean, when you are discussing or when you are going through, kindly see, when you are going through, I mean, this aspect of, I mean, news item, I mean, in this particular constitutional body, then you should also know precisely. You should also know precisely, I mean, what is the administrative power, what is the, I mean, the quasi-judicial power, what is the advisory power of the Election Commission of India. I mean, आपको चूंकि ये न्यूज आइटम में रहा है तो आपको इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप इसको जानने की जरूरत है। यहां पर यानी एक इंपॉर्टेंट बॉडी के रूप में, यानी आई मीन दिस लीगल सिनेरियो, I mean, subtitle C will also cover some important constitutional and also non-constitutional bodies. अब non-constitutional जब bodies की बात कर रहे हैं, non-constitutional bodies की बात कर रहे हैं तो naturally, है ना, in this connection, I mean, National Investigation Agency was in the news. It's a non-constitutional body. National Investigating Agency was in the news. National Investigating Agency was in the news. In the news because of the fact that in Koregaon case, one of the, I mean, accused, Sudha Bharadwaj, in Koregaon case, I mean, one of the accused, Sudha Bharadwaj, was provided, I mean, was given by Bombay High Court, I mean, a default bail. Now, default bail and this bail provided by, I mean, Bombay High Court is challenged by National Investigation Agency. तो naturally यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, और वैसे कई सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे नीति आयोग, तो जो न्यूज में है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू, जो न्यूज में है, जो न्यूज में है वो आपको, आई मीन, यू हैव टू कवर, आई मीन, अंडर दिस सब टाइटल सी लीगल सिनेरियो के अंतर्गत इसको कवर करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू कवर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑल्सो। तो लीगल सिनेरियो, अब आइए डी बोलता है इट विल ऑल्सो कवर, जब लीगल सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो एक चीज आई प्लीज डोंट फॉरगेट, आई मीन इन पीसीएस जुडिशरी, आई मीन इन पीसीएस जे जुडिशरी, I mean, there are certain questions on static legal GK, static general knowledge items of the Indian legal system, static legal GK also. तो static legal GK की जब बात करते हैं, when you talk about the static legal GK, है ना, तो naturally, I mean, you are expected to know, है तो static, somehow or the other it was in the news. जैसे उदाहरण के तौर पर, आई मीन, ड्यूरिंग दी, आई मीन, चीफ जस्टिस, ड्यूरिंग दी, आई मीन, रोस्टरशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई मीन, एनवी रमन्ना के कार्यकाल में, है ना, 9 जजेस को अपॉइंट किया गया। एनवी रमन्ना, एज यू ऑल नो, है ना, इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसका क्या प्रोसीजर है ना, यह स्टैटिक जीके का पार्ट है।
जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियन सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट द्वारा होता है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। लेकिन 9 जजेस जो अपॉइंट हुए हैं, है ना, जिसमें 3 महिलाएं हैं, आई मीन 3 विमेन, आई मीन सुप्रीम कोर्ट जजेस, है ना, उसमें साथ खास बात क्या है, खास बात जिसमें आई मीन नागरत्ना, I mean, she is going to become the 20 in 2027. She will be the first chief justice, women chief justice. तो आप समझ लीजिए स्टैटिक लीगल जीके, आई मीन कुछ एस्पेक्ट ऐसा है जो स्टैटिक है और स्टैटिक रहते हुए भी कभी कभी करंट में आ जाता। तो you are expected to know, I mean 3 important things. I mean, what is collegium system of appointment? What is the procedure of the appointment of Chief Justice of India? And what is the procedure of the appointment of, I mean, what is the recent appointment, 9 recent, I mean, judges appointment in Supreme Court? I mean, ये आपको relate करना पड़ेगा. So you have to relate. I mean, you have to relate with the help of, I mean, explanation of static general knowledge also. Static general knowledge also. Static legal general knowledge should also be covered. Static legal general knowledge should also be covered. Should also be covered. तो naturally ये आपको आइटम लीगल सिनेरियो का डी आइटम, I mean this is subtitled as D. This is subtitled as D. लीगल सिनेरियो का नेक्स्ट आइटम है सब टाइटल एज ई, यानी आइटम नंबर 1 का ई जरा सा देखिए। आइटम नंबर 1 का, आई मीन इफ यू गो थ्रू आइटम नंबर 1 ई, अगर ई को आप देखें, इफ यू गो थ्रू आई मीन आइटम नंबर ई, तो आइटम नंबर ई को अगर आप देखें तो नेचुरली आई मीन this relates to important verdicts. PCS, judiciary is the exam. The nature of the exam, I mean, requires the nature of the preliminary and mains examination with respect to state judiciary, I mean requires the proper organization of important verdicts. Important verdicts में आप पहला तो I mean latest verdicts को रखेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, I mean in this inaugural demo YouTube lecture, I mean एक चीज मैं बता दूं, I mean when we are referring to, I mean the latest important verdict, तो इसमें 2019, 2020, 2021 और 2022 को आपको पुटअप करना पड़ेगा। 2019, 2020, 2021 और 2022 को पुटअप करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे टेक द एग्जाम्पल यू सी, है ना, जैसे टेक द एग्जाम्पल अभी रिसेंट जो डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑन सेडिशन लॉ, आई मीन सेक्शन 124A ऑन सेडिशन लॉ, सुप्रीम कोर्ट आई मीन डिसाइडेड with respect to this colonial law, I mean sedition law 124A, this law is kept on hold. Two months time is given to the center to look into the matter till the registration of cases under this law will be kept on hold. तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है कि कौन केस में यह डिसीजन दिया गया, व्हाट इज द केस टाइटल।
केस टाइटल क्या था? 2022 का यह केस है, रिसेंट केस, आपने पेपर में देखा होगा। 2022 का यह केस है, दिस इज अ रिसेंट केस। तो केस का नाम है विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। सिमिलरली आज से जो जुडिशरी का हरियाणा जुडिशरी का जो एग्जाम शुरू हुआ है, आपको याद होगा इसका जो पीटी का एग्जाम हुआ था 2-4 महीना पहले, उसमें क्वेश्चन आया था, है ना, द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द केस टाइटल विथ रेस्पेक्ट टू, जिसमें ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड a committee under the headship of former Justice of Supreme Court R.V. Ravindran to monitor this controversy regarding Pegasus spyware, which is the Israeli, it is Israeli products. तो उसमें ये जो क्वेश्चन जुडिशरी, मैंने हरियाणा जुडिशरी का क्वेश्चन देखा, उसमें जो क्वेश्चन आया था, द क्वेश्चन विच वाज देयर इन हरियाणा जुडिशरी वाज विथ रिगार्ड टू मनोहर लाल शर्मा। 4 ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन देकर पूछा था कि किस केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया, कमिटी को दिया, किस केस में? मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यूसी। तो नेचुरली उसी तरह से अभी जस्ट आप देखिए राजीव गांधी असेसिन कन्विक्ट, है ना, पेरारी वलन, उसकी रिहाई हो गई, पेरारी वलन उसकी रिहाई हो गई। What is the case title? That is Perari Valan versus Perari Valan versus Union of India 2022। तो एक चीज यहां पर मार्क कर लो, जब लीगल सिनेरियो आइटम नंबर 1 पढ़ रहे हो, इस स्कीम में, स्कीम ऑफ करंट एंड लीगल जीके, तो ये संभावित है, this is a possibility, this is a possibility, है ना, कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स ऑब्वियसली ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स के बारे में विषय में पूछ सकता है। उसका फेमस सब्जेक्ट मैटर और कनेक्टेड केस लॉ क्या है, उसमें किस केस में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और डायरेक्शन दिया गया, किस केस में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और डायरेक्शन। तो ये करंट का एज एस्पिरेंट फॉर PCSJ, as an aspirant for PCSJ, I think it is required. As an aspirant of PCSJ, I think it is required. It is required what? It is required. ये required है कि आप थोड़ा टच करें इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स को भी। खास करके मैं जुडिशरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे there are a plethora of important Supreme Court decisions, जिसमें not only it is important, not only it is recent, but there are certain important guidelines or directions given in these important Supreme Court decisions। इसलिए you are expected, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि इस स्कीम के तहत, एक स्कीम के तहत जब आप करंट जीके को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब टाइटल ई ऑफ आइटम नंबर 1 इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स को भी टच करना, इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स को भी टच करना। उसी तरह से दी नेक्स्ट सब टाइटल इज एफ। अब एफ में देखिए, नाउ इफ यू कैन सी एफ, इफ यू सी एफ,
तो ये दिस रिलेट्स टू इंपॉर्टेंट लीगल पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट लीगल पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट लीगल पर्सनालिटीज। अब इंपॉर्टेंट लीगल पर्सनालिटीज की जब बात करते हैं, है ना, तो आई मीन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ओथ ऑफ अ न्यू चीफ मिनिस्टर, आई मीन इन पंजाब आफ्टर द आई मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, है ना, भगवंत मान, the appointment of I mean chief election commissioner, the appointment of I mean new ministers, the cabinet rank minister I mean of law and justice Kiran Rijju, आप ये भी expect करो. You should also expect a question from important I mean legal personalities, important legal personalities, important legal personalities. Similarly, आप जी पर आएंगे, आइटम नंबर 1 लीगल सिनेरियो के आइटम जी पर आएंगे, सब टाइटल जी पर आएंगे, तो हो सकता है जनरल लीगल आई मीन लैटिन फ्रेजेस आए, जनरल लीगल लैटिन फ्रेजेस आए। जैसे हो सकता है, दिस इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी, आपसे पूछ दे कि what do you mean by amicus curiae? What do you mean by suprema lex? What do you mean by suprema lex? Suprema lex populi et suprema lex populi et esto. What do you mean by amicus curiae? 4 ऑप्शन दे देगा। तो what I am trying to say, हम एग्जाम्पल दिखलाते हुए आपको पढ़ रहे हैं। What I am trying to say कि अगर आप ये स्कीम को सामने रखते हैं तो आप विषयांतर नहीं, आप you will not be able to grope in the dark। आपको एक तरीका मिलेगा, you will get a I mean proper way to prepare for your current I mean general awareness and current general knowledge you see। तो आइटम नंबर 1 लीगल सिनेरियो में A B C D E F G I mean 1 2 3 4 5 6 7 7 I mean sub items, 7 sub items must be taken into account while you are going through I mean your monthly I mean current magazine, and while you are subscribing to मंथली करंट मैगजीन। और मैं बताऊंगा आपको भी लास्ट में कि मंथली करंट मैगजीन कौन सा आप रखेंगे। आगे बढ़िए, आगे अगर आप बढ़ते हैं, इफ यू मूव फॉरवर्ड तो यू विल फाइंड सेकेंड आइटम है नेशनल सिनेरियो। अभी तक हम चल रहे थे लीगल सिनेरियो और मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको। अभी तक हम चल रहे थे लीगल सिनेरियो पर और मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको। अब आपको आइटम नंबर 2 नेशनल सिनेरियो पर को कवर करना है। नेशनल सिनेरियो का हिंदी हो गया राष्ट्रीय परिदृश्य, ये तो था विधिक परिदृश्य, दिस वाज लीगल सिनेरियो। आई मीन पार्ट 1 जो जनरल सिनेरियोज का, ये पार्ट 1 का जो आइटम नंबर 1 था, ये था विधिक परिदृश्य, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड लीगल सिनेरियो। सेकेंड आइटम है नेशनल सिनेरियो। तो नेशनल सिनेरियो बड़ा कंप्रीहेंसिव होगा। नेशनल जो सिनेरियो है, नेशनल जो सिनेरियो है ये बड़ा कंप्रीहेंसिव होगा। नेशनल सिनेरियो ये बड़ा कंप्रीहेंसिव होगा, है ना। कंप्रीहेंसिव इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल, ये सब को कवर करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब को कवर करेगा।
अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप 2-3 एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण के तौर पर आप 2-3 एग्जाम्पल ले लें। जैसे न्यूज में आया आपको, आई मीन इन 2021 यू सी आपका जो ड्यूरेशन होगा इस करंट आई मीन सिनेरियो का ड्यूरेशन कम से कम भी होगा तो 1 साल 1.25 साल का। एक चीज जान लीजिए, फॉर यू बोथ I mean year 2021 and 2022 both is important, दोनों इंपॉर्टेंट। और हम लोग जो जुडिशियल फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर I mean which is organized by Pahuja Law Academy, you see this is the greatness of, I must tell you, in none of the institute there is any special class for this I mean current scenario, you see। बहुत है, अगर हम इसको आई विल नॉट नेम देम, आई मीन बहुत है तो इन लोग है ना एक स्टडी मटेरियल दे देते हैं। यहां पर यू सी आई मीन इन पाहुजा लॉ एकेडमी, आई मीन आई मस्ट टेल यू, यू सी इन पाहुजा लॉ एकेडमी देयर इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या है? यू विल बी प्रोवाइडेड विथ मंथली आई मीन मैगजीन, substantial magazine covering every aspect of current general studies or current legal general knowledge, you see. Secondly, there is every week there is a 2 hours class, I mean that is undertaken by me for the last several years, I mean which are being taken 2 hours every Friday. There are 2 hours class and in which and under this scheme I mean the topics, I mean 8 to 10 topics are undertaken, 8 to 10 topics are undertaken। तो आप समझ लें this facility is being provided by I mean Pahuja Law Academy। तो आप देखिए नेशनल सिनेरियो, अब इसमें 3 एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर रहते हैं है ना, तो एक कल्चरल न्यूज आइटम ये है ना कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को द्वारा, and that is the first Indus site, or the name of the site is Dholavira। Now ये एक नेशनल सिनेरियो से रिलेटेड है, कल्चरल आइटम है which has its own universal value। तो यहां पर जैसे एक आइटम ये हो गया तो नेशनल सिनेरियो में ये रखा जाएगा। उसी तरह से है ना 2021 में आई मीन दी ग्रेट पाइनियर ऑफ चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा का देहांत हुआ। So naturally, Sundarlal Bahuguna and the Chipko movement is important in the national scenario. It's important in the national scenario. Similarly, 2021 में एक बाइनियल रिपोर्ट आया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, India State of Forest Report 2021. This is a biennial report that is at the interval of 2 years. तो ये नेशनल सिनेरियो से रिलेटेड है। हम तो आपको पूरे स्कीम के तहत एग्जाम्पल के साथ दर्शा के बता रहे हैं। This is the pattern of study. Every week 2 hours apart from study material which is given to all of you, will be given to all of you monthly. Additional advantage is given. A separate class is organized every week for 2 hours. For 2 hours.
आगे बढ़िए। देन यू कैन कम टू नेशनल सिनेरियो। तो नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो, दैट इज आइटम नंबर 3। इंटरनेशनल सिनेरियो ये नॉन लीगल हो गया। अब इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस एंड समिट, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस एंड समिट, ये नॉन लीगल। तो नेचुरली आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेशनल नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो इज वेरी मच इन द न्यूज। तो नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, नाटो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है, नाटो का हेडक्वार्टर कौन है, नाटो में लेटेस्ट मेंबर का एप्लीकेशन किसने दिया है। जैसे अभी फिनलैंड और स्वीडन ने दिया है, वैसे ऑल टुगेदर देयर आर 30 मेंबर्स। हमको याद है हरियाणा के प्रीवियस 2017 में जो हरियाणा का पेपर हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, उसमें हरियाणा का जो पेपर हुआ था उसमें यू विल फाइंड इट, है ना, कि उसमें उस समय मोंटीनिग्रो 29th मेंबर बना था एंड दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू सी हरियाणा जुडिशियरी। अब तो खैर 30 मेंबर्स हैं, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। अब दो ने अप्लाई किया है, दो ने अप्लाई किया है, विच विल बी ऑल प्रोबेबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, दैट इज फिनलैंड एंड स्वीडन। तो आपको जब इंटरनेशनल सिनेरियो रख रहे हैं नॉन लीगल, आप स्कीम के अनुसार यू शुड मूव अकॉर्डिंग टू द स्कीम गिवन ऑन द बोर्ड। स्कीम के अनुसार आप you should move in accordance with the scheme given। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो स्पोर्ट्स आइटम नंबर स्पोर्ट्स अवार्ड्स गेम्स एंड ऑनर्स। तो नेचुरली स्पोर्ट्स अवार्ड्स गेम्स एंड ऑनर्स की जब बात करेंगे तो नेचुरली ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो गए। अब 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो यहां से आएगा। अब इंटरनेशनल में अगर ले लो तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, नोबेल प्राइज। नेशनल पर अगर ले लेते हैं तो है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कितना नेशनल अवार्ड है, उसको एक जगह रखना होगा। किसको ऑनर क्या मिला है, किसको अवार्ड क्या मिला है। अभी जैसे आपको थॉमस कप में बैडमिंटन में जो फतह हासिल की गई और निखत ने जो गोल्ड मेडल लिया है, आप ये मानकर चलो कि स्पोर्ट्स अवार्ड्स गेम्स और ऑनर्स है ना, आप ये मानकर चलो कि आपको 3 क्वेश्चन तो रहेगा, चाहे कोई whatsoever the exam may be, whatsoever the exam। तो ये आप देखिए, what I was trying to say, हम ये कहना चाह रहे थे, what I was trying to say, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये फर्स्ट पार्ट का स्कीम हो गया, जिसका फर्स्ट पार्ट का जो मेन हेडिंग है वो है जनरल सिनेरियो इंपॉर्टेंट आइटम, और स्कीम क्या है, दिस इज द न्यू स्कीम ऑफ करंट एंड लीगल जीके। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। मैंने एग्जाम्पल भी साथ साथ बताने की कोशिश की है। विधिवत जो है ना, आप फाउंडेशन कोर्स में है ना, जब आप क्लास करेंगे तो यू विल हियर मी ऑल टुगेदर देयर आर सर्टन
गुड नंबर ऑफ टॉपिक्स यू सी। और एक चीज जान लीजिए, इसमें एक फायदा और एडिशनल क्या होगा, अगर आप इस स्कीम के तहत पढ़ते हैं तो एक एडिशनल जो आपको फायदा होना, एक एडिशनल जो फायदा होगा वो ये हो, वन एडिशनल बेनिफिट इज दैट कि आपको जो टॉपिकल ऐसे आता है मेंस में, अब जैसे अभी है ना डीजीएस का पीटी रिजल्ट हुआ, आई मीन दिल्ली जुडिशियल सर्विस का जो पीटी रिजल्ट हुआ, तो पीटी जो रिजल्ट हुआ है ना पीटी का जो रिजल्ट हुआ है, अब आपको करीब 1000 वर्ड्स में ऐसे भी लिखना है। तो 1000 वर्ड्स में जब ऐसे लिखने की बात होगी, जब आप ये जनरल सिनेरियो को पूरा टच करेंगे तो आपको टॉपिकल ऐसे भी मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लेट अस टेक वन टॉपिकल ऐसे सामने रखिए, मान लिया ऐसे आ गया, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट but not a secular society. India is a secular state but not a secular society. Write an essay in 500 words. तो फायदा क्या होने जा रहा है, what you are going to, how you are going to be benefited, how you are going to be benefited in this connection, how you are going to be benefited in this connection, है ना, आप कैसे बेनिफिटेड होंगे, है ना, इस कनेक्शन में आप कैसे बेनिफिटेड होंगे, वो जब इस स्कीम के भीतर आप जनरल सिनेरियोस के अंतर्गत, है ना, आइटम नंबर 4 तक पढ़ेंगे, जो जिसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो यू विल ऑल्सो बी कॉन्फ्रंटेड विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एसे टॉपिक। कई सारे छोटे छोटे से, और हम लोग जो 2 घंटे का क्लास एवरी वीक लेते हैं थरली, उसमें करीब करीब 10 टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। वी कवर एटलीस्ट 10 टॉपिक्स एवरी वीक। फाउंडेशन कोर्स आपका 6 महीना पार करते करते, 6 से 7 महीना पार करते करते यू आर इन आई मीन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो एक तो आप समझ लो, एक तो एस्पेक्ट। अब आइए दूसरा, अब हो गया मिसलेनियस सिनेरियो, वो था जनरल सिनेरियो, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब आइए मिसलेनियस सिनेरियो। अरे मिसलेनियस सिनेरियो से मेरा मतलब है कि कुछ चीज टुकड़ों में जनरल नॉलेज, वन लाइनर में। मिसलेनियस सिनेरियो जो है वो कुछ 1 लाइनर या 2 लाइनर या 3 लाइनर इवेंट है, तो उसको हमने एक अलग आई मीन पार्ट, जिस पार्ट का हेडिंग है मिसलेनियस सिनेरियो, आई मीन काइंडली सी द बोर्ड, काइंडली सी द बोर्ड। मिसलेनियस सिनेरियो को जब आप देखते हैं तो नेचुरली अब आइटम नंबर, इसमें ऑल टुगेदर देर आर स्मॉल 8 आइटम्स। आप देखिए बोर्ड के सामने, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करें। मिसलेनियस में पहले है, देखिए इंपॉर्टेंट डेज, डेकेड्स, ईयर्स, एनिवर्सरीज, सेंटेनरी। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, आप देखिए अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब 2 इंपॉर्टेंट डेज आने जा रहा है, 5 जून और 21 जून। 5th जून इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। एंड 21 जून इज वर्ल्ड आई मीन विश्व योगा डे। इसका अलग थीम हो।
इन्विरोनमेंट डे, उसका अलग थीम होगा। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, और डेज में भी आप सेलेक्ट कौन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ी बात है कि जो नया शुरू हुआ है, सेलिब्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डेज जो नया शुरू हुआ है, मैं समझता हूं कि वो इंपॉर्टेंट डेज के रूप में या डेकेड्स के रूप में या ईयर्स के रूप में आप देखिएगा, है ना, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो विड्रॉ किया महात्मा गांधी ने, चौरी चौरा का लास्ट ईयर जो है आप देखेंगे कि उसका, है ना, 100 ईयर्स मनाया गया। जालियांवाला बाग का भी 100 ईयर्स सेंटेनरी भी मनाया गया। तो आपको डेज, डेकेड्स, ईयर्स, एनिवर्सरी, सेंटेनरीज, है ना, इसको भी मिसलेनियस में इसको ध्यान में रखना है। आप आगे बढ़िए। सेकंड में आइए, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन। अरे इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन, जैसे जो उदाहरण के तौर पर 2 कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। जैसे आप एक इसको एग्जाम्पल ले लें, है ना, के कस्तूरी रंजन कमिटी, के कस्तूरी रंजन कमिटी, तो कस्तूरी रंजन कमिटी का ही देन है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो आप, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमीशन, ट्रिब्यूनल्स और एडहॉक कमीशन। जैसे अभी डीलिमिटेशन कमीशन, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन का, है ना, आपको एक रिपोर्ट आ रहा है। डीलिमिटेशन कमीशन विच वाज हेडेड बाय, आई मीन जस्टिस, लेडी जस्टिस, आई मीन फॉर्मर जस्टिस देसाई। तो वो एक डीलिमिटेशन कमीशन। तो नेचुरली सेकेंड आइटम में मिसलेनियस जब शुरू कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ कमिटी या कमीशन पर भी पूछना। आगे बढ़िए, आइटम नंबर बुक्स एंड ऑथर्स, करंट एंड ओल्ड, दोनों न्यूज में बुक्स एंड ऑथर्स। जैसे, है ना, दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी के विषय में एक किताब शशि थरूर ने लिखा है, पार्लियामेंटेरियन, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से आपको, है ना, रिटायर्ड फॉर्मर जस्टिस रोहिंटन नारिमन के पिताजी फली नारिमन ने एक बड़ा फेमस बुक लिखा था, है ना, फेडिंग विथ मेमोरी, फेडिंग मेमोरी। तो बुक्स एंड ऑथर्स को आप दरकिनार नहीं कर सकते। करंट भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, ये मिसलेनियस में। आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट पर्संस एंड प्लेसेस, नॉन लीगल, इंपॉर्टेंट पर्संस एंड प्लेसेस नॉन लीगल इन द न्यूज। तो नेचुरली इसमें धौलावीरा भी आ जाए। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया तो नेशनल में भी आएगा और यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस में भी आ जाएगा। It's the first, I mean, Indus Valley site which was declared by UNESCO as a World Heritage Site. You see, that is what I said earlier. उसी तरह से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकता है। आपको याद होगा कई सारे नाम दिए गए। उसी तरह से कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स और मिशन हो सकता है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर प्लान और मिशन, जैसे इंद्रधनुष मिशन, ये नेशनल सिनेरियो में भी आएगा और मिशन में भी आएगा। आई मीन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात कर रहा है, अदर देन कोविड-19, इंद्रधनुष मिशन। जैसे 7th आइटम में आइए, इंपॉर्टेंट स्टेट कंसर्न न्यूज। अब देखिए, ये मैंने 7th आइटम जो दिया, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड न्यूज। स्टेट
important state news. There is a purpose behind स्टेट न्यूज, आई मीन इंपॉर्टेंट स्टेट। अब हो सकता है, मान लिया फर्ज करो तुम यूपी जुडिशरी दे, तुम हरियाणा जुडिशरी दे, तुम आई मीन दिल्ली जुडिशियल सर्विस दे, तो हो सकता है वहां का कोई इंपॉर्टेंट प्लान, वहां का कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपसे पूछ सकता है। यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चन, you may be asked a particular question. I mean there are at least है ना, मध्य प्रदेश और यूपी में तो कुछ रहता है ज्यादा, लेकिन there must be at least 3 to 5 questions from a state. So I have covered important state concerned news also. और लास्ट है जैसे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, तो 2020 का आई मीन 2020, 2021 एंड 2022 कवर करना पड़ेगा। यू हैव टू कवर। अब कई सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लें ना, the recent report, जैसे इंडियन कंडीशन में एक रिपोर्ट आया, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेवल पर एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट जो स्पेशली आई एम कवरिंग, यू सी 2020, 21 एंड 2022 बोर्ड को इस स्कीम को ध्यान रखेंगे। आई मीन काइंडली लुक टू दिस स्कीम प्रॉपरली, और तब तैयारी करें तो आपको एक रास्ता मिलेगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विथ अ पर्टिकुलर वे, नहीं तो आप यू विल बी ग्रोपिंग इन द डार्क। तो दिस miscellaneous, I mean the last item, index and reports covering 2020, 21 and 2022. तो you see नटसेल में मैंने यही बताया, कि when you start with, I mean this most important part of general knowledge, that is current affairs and current legal GK, so you should study under this scheme. You should study under this scheme. आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, कहीं भी आपको कोई लिफलेट दे देगा, कुछ 10 पेज का कोई मैगजीन दे देगा, वैसे नहीं होता। कौन एरिया से कौन क्वेश्चन आएगा, ये 2 घंटे का क्लास हो, और सभी जगह ये काम करेगा आपको। इट्स नॉट दैट कि पीसीएस जुडिशियरी, कल आप आई मीन पब्लिक सर्विस कमीशन भी दें, वहां भी काम करे। कोई एग्जाम दीजिए, यू सी दैट इज व्हाट इन द बिगिनिंग आई सेड, कि जनरल स्टडीज और जनरल करंट नॉलेज is a very important component part of, it's a very important component of almost every competitive examination, and PCSJ is not an exception. कहीं 150 नंबर का है, कहीं 250 नंबर का, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और दरकिनार अगर करते हैं तो यहां पर आप कमजोर रहिएगा, आपका सक्सेस नहीं। तो this aspect has to be considered, इसको ध्यान में आपको रखना होगा। This aspect has to be considered.
लास्ट में हम 2 सजेशन दे रहे हैं कि आप पढ़ेंगे क्या। लास्ट में मेरा सजेशन ये है कि इंग्लिश माध्यम के अगर हैं तो आप आइदर प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए या करंट अफेयर्स टुडे दृष्टि को सब्सक्राइब कीजिए। और ये तो जनरल सिनेरियो के लिए, लेकिन मिसलेनियस सिनेरियो के लिए एक ही किताब हम बताएंगे, क्योंकि 1 लाइनर 2 लाइनर है, लिख लीजिए, वो है स्पीडी का लेटेस्ट एडिशन। स्पीडी का लेटेस्ट एडिशन, स्पीडी का लेटेस्ट एडिशन। तो मैं समझता हूं कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने का प्रयास करें और इस तरह से एक स्कीम के अंतर्गत, इस तरह से एक स्कीम के अंतर्गत जो है इसको आप समझने का प्रयास करें, है ना। थैंक यू, थैंक यू।